કરી છે ત્યારે આપે આપેલો કોલ સમગ્ર ગુજરાતના બધા જ કાર્યકર્તાઓ સ્વીકારી પ્રભુ શ્રીરામે જેમ અંગત પર ભરોસો મૂક્યો હતો એ જ રીતે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા અંગત બની અને આ કામની અંદર જોડાશે। હું ગુજરાતના 6 કરોડના હૃદય સરમરાટ અને મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈને હૃદયપૂર્વક વિનંતી કરું કે આપ શ્રી પણ આ સમગ્ર ગુજરાતના બધા જ કાર્યકર્તાઓને આ શુભ પ્રસંગે માર્ગદર્શિત કરો। માન્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ। ડોક્ટર ઠંડી નથી તો બધા કેમ શાંત શાંત છે? તમારો અવાજ ચાલુ રહે, વાઇબ્રન્ટ રહેવું પડે। ગાંધીનગર લોકસભાના તમે કાર્યાલયમાં બેઠા છો। ગાંધીનગર લોકસભાના મધ્યસ્થ કાર્યાલયના શુભારંભ સાથે સાથે ગુજરાતની 25 લોકસભાના કાર્યાલયના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા આદરણીય રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી, આપણા પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ અને નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ CR પાટીલજી, પ્રદેશ સહકોષાધ્યક્ષ અને એમસીના પ્રભારી શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ શાહ, મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, મેયર શ્રી હિતેશભાઈ મકવાણા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી કંચનબા વાઘેલા, શહેર અધ્યક્ષ તથા ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ શાહ, साथी मारा धारासभ्य श्री जितेन्द्रभाई पटेल, श्री हर्षदभाई पटेल, श्री कानुभाई पटेल, श्रीमती रीटाबेन पटेल, श्री लक्ष्मणजी ठाकोर, डेप्यूटी मेयर અને મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। આજે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની આઝાદ હિન્દ ફૌજના સ્થાપક શ્રી સુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મતિથિ એટલે કે આપણે પરાક્રમ દિવસની આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આપણે સૌએ કાલે રામમય બની ગયા, બધા રામમય બની ગયા અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રીએ એક મોટો સંદેશો દેવથી દેશ એટલે દેવ અને દેશ એ બંને માટે ની આપણી જે પ્રેમ છે, એમની પ્રીતિ છે આપણી, એ ક્યાંય કરતા ક્યાંય કચાશ ના હોય એ રીતે આપણે બધાએ કામ કરવાનું છે। ને આપણે બધા કામ કરવા ટેવાયેલા છીએ અને જે સંસદીય ક્ષેત્રમાં આપણે બધા બેઠા છીએ અત્યારે, એ સંસદીય ક્ષેત્ર એટલે આપણા ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ, એમની કાર્ય પદ્ધતિ આપણને ઘણી વખત એમ થાય કે ભાઈ કામ કરવું, એક સામટા કાર્યક્રમ આવી જાય, દોડાદોડ વધી જાય, કોઈક વખત કોઈક 15 દાડામાં એવું થયું હોય ત્યારે આપણે બધાને એમ થાય કે ભાઈ આરું આટલું બધું તો કામ ના થાય, આટલું બધું દોડધામ ના થાય, ક્યાંક અંદર અંદર નાની મોટી રકઝક થઈ જાય। પણ આપણને આપણા નેતૃત્વ એવું મળ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે એમની કાર્ય પદ્ધતિ સામે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે ના ના, આપણે તો હજુ ઘણું બધું દોડવાનું બાકી છે। એ હંમેશા ત્યાં બેઠા બેઠા પણ એમનો સંસદ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ નાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હોય
સારી કે ખોટી બંનેમાં એમણે એમની હાજરી બતાડી છે, આપી છે. આટલા બધા વ્યસ્ત કાર્યક્રમો છતાં પણ એમના પ્રજાજનો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ તરીકેનું કર્તવ્ય કેવું હોય, કેવી રીતે એને નિભાવાય, એ જો કોઈની પાસેથી શીખવાનું હોય તો માનનીય અમિતભાઈ પાસેથી આપણે બધાએ શીખવું. વડાપ્રધાનશ્રીને તો આપણે કાર્ય પદ્ધતિનો સૌથી વધારે લાભ ગુજરાતને મળ્યો છે. કઈ પરિસ્થિતિ હતી, કેવી પરિસ્થિતિમાંથી આજે ગુજરાત કયા લેવલે પહોંચ્યું છે. ગુજરાત મીન્સ ગ્રોથ. એ લેવલે ક્યારે પહોંચ્યા, કેવી પરિસ્થિતિમાં હતા, અને એ પરિસ્થિતિમાંથી માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી આપણને અહીંયા સુધી લઈ આવ્યા છે. એમના નેતૃત્વમાં આપણે બધા દેશ અને દુનિયાને બતાડ્યું છે કે ગુજરાત એ અત્યારે સાચા અર્થમાં વાઇબ્રન્ટ અને જે નવા નવા ઉભરતા ક્ષેત્રો છે એની અંદર ક્યાંય કોઈને વિકાસ દેખાતો હોય તો એ ગુજરાતમાં દેખાય છે. અને આ ગુજરાતનું હર હંમેશ જે રિઝલ્ટ આપણે પબ્લિક સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ એનું જો કોઈ કારણ હોય તો એ કાર્યકર્તા છે. કે સરકાર અને સંગઠન બે એક છે એટલે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે. આપણને જે માહિતી, નાનામાં નાની માહિતી તમારે જોઈતી હોય તો માન્ય પાટીલજીના ત્યાં આગાડી એટલે આપણા પ્રદેશ કાર્યાલય ઉપર ફોન કરો તો તમને વિધિન એ મિનિટ, એવું કહેવાય કે વિધિન એ સેકન્ડ તમને પાછી રિવર્સ આવી જાય કે તમને આ જોયું તો તમે આ લઈ જાઓ. આ લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને આપણને આ બધી જ વસ્તુ મળતી હોય ત્યારે આપણે તો બધાએ આ 26 લોકસભા ને એમાંય પાટીલજીનો કાર્ય મંત્ર છે કે 5 લાખથી વધારે વોટથી દરેકે દરેક લોકસભા આપણે જીતવી છે. અને સરકાર તરીકે અમારે જે કામ કરવાનું હશે એ તમારી પાસેથી, તમારી સાથે રહી અને એ કામ અમે કરીશું. આપણે સૌ સાથે મળી અને 26 સીટો 5 લાખથી વધારે વોટથી જીતીશું એવો અહેસાસ આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને આપીએ, જેથી કરીને એમને એમ થાય કે ના 26 અને આપણા માટે પણ માન્ય નરેન્દ્રભાઈને ત્રીજી વખત બેસાડીશું અને સાથે સાથે 26 સીટો પણ આપણે ત્રીજી વખત આપવાના છીએ. એટલે આપણા માટે બી એક ગૌરવવંતો આ સમય છે. તો આપણે એના માટે માન્ય નડ્ડાજીને વિશ્વાસ અપાઈએ અને આપણે સૌ સાથે મળી અને અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું તો આજે કાર્યાલયનું અહીંયા ઓપનિંગ આજથી થઈ જ ગયું છે. તો આપણે સૌ સાથે મળીને અત્યારથી જ 26 સીટો જીતવા માટે કામે લાગીએ. એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. આપણા વાણી અને વર્તનની અંદર સામ્યતા હોવાના કારણે સમગ્ર ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને ગુજરાતની 6 કરોડની જનતાએ આપની પર મૂકેલો વિશ્વાસ અને આપનો કોલ છે અને સહૃદય સ્વીકારી આ ગુજરાતના વિકાસની અંદર આપની સાથે પણ ખભે ખભા મિલાવી પાર્ટીને મોટી કરવાનો સતત પ્રયત્ન કાર્યકર્તાઓ માટે થઈ રહ્યો છે. અને અત્રે આપે સમગ્ર ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓને એક આદર્શ સાંસદ તરીકે માન્ય અમિતભાઈની કામગીરી, માન્ય CR પાટીલ સાહેબની નાનામાં નાની યોજના અને વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટીના આજે ગૌરવ લઈ શકે એવા આ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર સન્માન્ય નરેન્દ્રભાઈને યાદ કરી સમગ્ર ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓને આપે જામબંધી ભૂમિકાથી આવનાર સમયનું ટાસ્ક આપી જે પાટીલ સાહેબનો કોલ છે એને પરિપૂર્ણ કરવા માટેનું આહવાન કર્યું છે. એ બદલ સમગ્ર ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓથી હું આપને આશ્વસ્ત કરું છું. અને હવે अब मैं
पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आज हमारे गुजरात में लाखों कार्यकर्ताओं को 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, इसमें माननीय पाटिल साहब का जो कॉल है उनको सार्थक करने के लिए, सब कार्यकर्ता को मार्गदर्शित करने के लिए, कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए के स्वयं वो गांधीनगर संसदीय मत विस्तार के कार्यालय यानी चुनावी प्रचार कार्यालय का उद्घाटन समारोह ની અંદર उपस्थित हुए। मैं सम्माननीय नड्डा जी को दे दिल से विनती करता हूं कि अपने वाणी पुष्पों से समग्र गुजरात के 25 से 25 यानी 26 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आप मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। बोलिए बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय CR पाटिल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे यहाँ के कर्णावती के अध्यक्ष और विधायक श्री अमित भाई शाह जी, हमारे KC पटेल जी जो लोकसभा के क्लस्टर के कन्वीनर हैं, धर्मेंद्र भाई शाह जी, प्रतिभाबेन जैन जी, संजय भाई जी, हितेश भाई जी और हमारे ट्रेजरर धर्मेंद्र भाई जी और समस्त हमारे सभी सदस्यगण, हमारे पदाधिकारीगण प्रदेश के और जिला के और विभिन्न 25 स्थानों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और उनके साथ साथ हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव के दृष्टि से जो लोकसभा के कार्यालय की व्यवस्था बनाई गई है, यहां गांधीनगर में भी और ऐसे ही अन्य 25 स्थानों पर यानी 26 के 26 लोकसभा क्षेत्र में हम कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ मैं CR पाटिल जी को और भूपेंद्र भाई को और गुजरात की टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के श्री गणेश होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का आज से श्री गणेश कर दिया है। इसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देता हूं। मुझसे अभी जब मैं कार्यालय का उद्घाटन करके बाहर आया तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आप अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए और कैंडिडेट की बात भी अभी दूर है और आप कार्यालय घोषित कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा बीजेपी फर्स्ट
Gujarat first, and we have to make under Prime Minister Modi, India first. We have to go forward. इसलिए आप सबको विशेष करके बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात प्रदेश ने पहल की है और फर्स्ट होकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, इस देश के सांस्कृतिक विरासत में, धार्मिक विरासत में, आध्यात्मिक विरासत में, राजनीतिक विरासत में गुजरात प्रदेश का एक अपना अनूठा योगदान है। अगर हम बात करें तो गुजरात ने अनेकों आध्यात्मिक नेताओं को देश दुनिया को प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए इस गुजरात की भूमि ने दिया है। अगर हम बात करें तो सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए सामाजिक नेतृत्व को भी देने का दम और साहस अगर किसी प्रदेश ने दिखाया है तो अनेकों सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाले नेतृत्व भी गुजरात से पैदा हुए, गुजरात की धरती से पैदा हुए। और उसी तरीके से आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत में भी गुजरात का एक विशेष योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनका संबंध पोरबंदर गुजरात से था, तो हम नहीं भूल सकते कि इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो गुजरात से थे। और मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम, सक्षम भारत बनाने का काम, स्वाभिमान से ओतप्रोत भारत बनाने का काम, अपने विरासत के ऊपर स्वाभिमान से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के सपूत, इस प्रदेश के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे जब आने का सौभाग्य मिलता है और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जब लोकसभा के कार्यालयों का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि यह चुनाव में गुजरात पहले भी 26 में से 26 था, उससे पहले भी 26 में 26 था और 2024 में भी 26/26, 26 आउट ऑफ 26 रहने वाला है। इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आज ये हमारा सौभाग्य है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य है कि आज हमारे पास ऐसा नेता है जिसकी दुनिया में रेटिंग 76%, हाईएस्ट पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की है। उसको हमको याद रखना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य बन जाता है कि वो दुनिया के नेता तो हैं ही, देश के प्रधानमंत्री और देश के नेता तो हैं ही, सबसे पॉपुलर नेता है, सबसे ज्यादा लोगों में जाने जाने वाले नेता है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है। यह हमारा सौभाग्य है। और उनके नेतृत्व में जब हम 2024 के चुनाव में जा रहे हैं तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जो मैं भूपेंद्र भाई पटेल जी से, मुख्यमंत्री जी से कर रहा था, CR पाटिल जी से कर रहा था, कि गुजरात के कार्यकर्ताओं को बहुत फख्र महसूस होना चाहिए। They should feel elevated and they should feel privileged. दोनों उनको महसूस होना चाहिए। उनको गौरव भी महसूस होना चाहिए और उनको
ये विशेष स्थान मिला है, इसका भी उनको गौरव होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रीति नीति, संगठन के मंत्र तंत्र, इनको विकसित करने में गुजरात की एक अहम भूमिका रही है, जिसको हमने देश में स्थापित किया है। और ये छोटी छोटी बातों को गढ़ने का काम, ये छोटी छोटी बातों को एक तंत्र के रूप में संभाल करके आगे बढ़ाने का काम, ये सारी बातें हम सब लोगों ने नरेंद्र भाई से सीखी। और संगठन कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, संगठन कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, संगठन इस प्रकार का कैसे बनाया जा सकता है, न भूतों और भविष्य में तो होगा, बीजेपी के आधार पर होगा, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाली पार्टी बनाने का काम किया। मित्रों, मैं इसके साथ साथ और भी आपसे कहना चाहता हूं, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की, भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। और मैं एक बार नहीं बोलता हूं, अनेकों बार बोलता हूं। He has changed the definition of politics and he has changed the culture of political culture of the country that we have to understand. ये हमको समझना पड़ेगा। और जब मैं ये कहता हूं तो इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि वो हमारे नेता हैं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 70 साल कांग्रेस पार्टी ने, अन्य दलों ने राजनीति जाति के आधार पर की, राजनीति इलाके के आधार पर की, राजनीति भाई को भाई से बांट करके की, राजनीति वोट बैंक की राजनीति पर की, जातीयता के आधार पर देश को बांटकर अपने घर को, अपने परिवार को भरने की राजनीति की। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने, देश की राजनीति का डेफिनेशन बदल गया और अब देश में राजनीति वही करेगा जो अपने काम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता में जाएगा और उसके आधार पर राजनीति करेगा। आज अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई, आज क्रेडिबिलिटी की राजनीति हो गई, आज लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी के प्रश्न पर लोगों ने वोट देना तय कर लिया। आज पार्टी के कार्यशैली पर और कार्य करना पर, कार्यकलाप पर वोट देना शुरू कर दिया। अभी अभी देखिए, ये कांग्रेस के नेता, ये इंडिया अलायंस, ये लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। इनको जाति से मतलब नहीं थी, जाति जनगणना पर वोट लेने की और वोट गर्म करने की राजनीति थी। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को सही ठहराया, बोला ठीक है, हम इसके साथ हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारत में सिर्फ 4 जातियां हैं, और 4 जातियां हैं ज्ञान, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता किसान और एन फॉर नारी शक्ति। यही 4 जातियां हैं जिनके लिए हमको काम करना है। यानी देखिए, इंडिया अलायंस जाति के नाम पर देश को बांट रहा था और मोदी जी ने ज्ञान के नाम पर देश को एक इकट्ठा करने का काम किया है। युवा है तो सारे देश के, किसान है तो सारे देश के, नारी शक्ति है तो सारे देश की। अगर गरीब है तो वो अगर गुजरात में है तो वो असम में भी है, वो केरल में भी है। सभी गरीब की चिंता करना ये हमारा धर्म बनता है, यही जाति है, इसको लेकर के आगे बढ़ना। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई संस्कृति के साथ जोड़ने का काम किया है। और उसी तरीके से अगर हम कहें, यहां गुजरात में आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं अगर बात करूं किसानों की, तो आपके यहां तो
सुजलाम सुफलाम तभी आ गया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उस समय आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 250% भूमि उनके जमाने में उसको इरिगेटेड लैंड, यानी जो नहर से पानी पहुंचाया जा सके, ये नहर का पहुंचाने का काम उस समय हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉटन का, रुई का, कॉटन का 35% इजाफा उस समय कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो आज गुजरात सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में 1 ट्रिलियन रुपीस का बिजनेस डेयरी बिजनेस से करता है और देश में गुजरात नंबर 1 खड़ा है। अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर की तो आपके यहां मुख्यमंत्री अमृतम योजना जो उस समय चलाई गई और बाद में खिलखिलाहट, संजीवनी, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में मुझे ही स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आयुष्मान भारत देने का काम करने का मौका मिला, तो उस समय हमको मिला। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। यहां एमएलए बैठे हैं, यहां एमपी बैठे हैं, आप लोगों में से भी बहुत से लोग एमएलए रहे होंगे। आज से 20 साल, बस 10 साल पहले आप क्या बोलते थे कि मैं मुख्यमंत्री जी इन्हें 1.5 लाख रुपए देने की कृपा कीजिए, इसका बाईपास होना है, इसको स्टंट लगना है, इसको 5 लाख देने की कृपा कीजिए, ये गरीब आदमी है, इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका लिवर ट्रांसप्लांट होना है। ऐसी अर्जियां लेकर के हमारे एमएलए जाते थे कि नहीं जाते थे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा यहां अमृतम योजना में 2 लाख का इलाज मुफ्त किया गया, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो आज हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की गरीब आबादी जो थी, उसको 5 लाख रुपए हर साल गरीबी के गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज का काम किया। और यहां तो आपने उसमें और जोड़ दिया, और उसमें और 5 लाख रुपए जोड़ दिया, 10 लाख रुपए आपने इस कार्यक्रम के तहत देने का तय किया है। यह बताता है कि किस तरीके से आज गरीब आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में अब चिंता नहीं करता है, और यह जाति के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, यह गरीबी के आधार पर दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? बाय प्रोफेशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत किसको दिया जा रहा है? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का लिफ्ट, बस का कंडक्टर, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ लिफ्टमैन किसी बिल्डिंग में, कोई बाल काटने वाला हमारा बार्बर भाई, कोई जूते का काम करने वाला हमारा भाई, ऐसे गरीब लोग, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे गरीब लोग जो गंभीर बीमारी से लड़ नहीं सकते थे, आज वो अपना सालाना 10 लाख रुपए का इलाज वो गुजरात की धरती पर कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए कैसे परिवर्तन आया। अभी अभी आपने वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल बनाए हैं और 10वां वाइब्रेंट गुजरात आपने मनाया। मुझे खुशी है कि इस वाइब्रेंट किया, और 2003 में अगर 43 देशों से लोग आए थे तो इस बार 140 देशों के लोग वाइब्रेंट गुजरात में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ 12.25% के आसपास है, जो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट में गुजरात नंबर 1 पर खड़ा है। 32% एक्सपोर्ट गुजरात कर रहा है, 32%। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लगभग सारे देश की दृष्टि से देखा जाए तो आज गुजरात में, फिर चाहे वो डायमंड रिसर्च और मर्केंटाइल का यूनिट सूरत में हो या फिर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में हो, ये अपने आप में देश में और दुनिया में स्थापित संस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो आज भारत दुनिया का सबसे
सस्ती डिस्पेंसरी और सबसे इफेक्टिव दवाई देने वाला भारत हो गया है और उस भारत का लीडर गुजरात हो गया है फार्मास्यूटिकल्स के दृष्टि से। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास के दृष्टि से हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम हुआ है। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि भारत भी आज कितना तीव्र गति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हम 2014 में आर्थिक जगत में हम 11वें नंबर पर खड़े थे। वी वर द 11th। और हमारे बारे में कहा जाता था ये फ्रेजाइल 5 हैं, ये फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी है। आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 11वें नंबर से छलांग लगाकर उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और आपको जानकर और खुशी होगी कि आप 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार लाएंगे और 2028 में भारत दुनिया की तीसरी नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्टील में हम नंबर 4 पर थे, आज हम नंबर 2 पर हैं। ऑटोमोबाइल में हम सुनते थे डैटसन, टोयोटा, जापान हमसे आगे था। आज भारत देश में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है, 3rd नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, एंड वी हैव डिफीटेड जापान। वी आर अहेड ऑफ जापान। और हमारे आगे सिर्फ 2 ही देश रह गए, अमेरिका और चाइना। वी आर द 3rd लार्जेस्ट मार्केट। आज ये आकर के हम खड़े हो गए, ये हमको समझना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स में मैंने आपसे बात की, मोबाइल की अगर हम बात करें, आज से 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज आपके पास जो मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। एप्पल भी अब 97% ऑफ मोबाइल आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यह भारत की बदलती तस्वीर है। और इसके साथ साथ मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये 2024 का चुनाव आ रहा है, देश को हमको बताना पड़ेगा कि क्यों 2024 में हमें मोदी जी फिर से चाहिए। क्यों 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। इसलिए खिलना चाहिए क्योंकि हमारा सपना है और मोदी जी का लक्ष्य है कि इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। गरीब को हम गरीबी दूर करके आगे बढ़ाएंगे, इस बात के लिए हम समर्पित हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे कांग्रेस के लोग मखौल उड़ाते थे, ये क्या है, ये कौन सी योजना है, उनको मालूम नहीं था। आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बोल दिया, बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रही है। और IMF बोलता है कि हमारे 13.5 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, ये IMF बोलता है। और अभी अभी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। इस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कभी सोचा था कि गरीब को कोई पक्का छत मिलेगा? आज 4 करोड़ लोगों को छत मिल गया है। मैं आपको सुनाता हूं, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, मैं 1993 में पहली बार MLA बन गया था, 1993 में। और 1993 में मेरे BDO साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आया करते थे और मुझसे कहते थे, नड्डा जी आप बताओ, आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, किसको दें, किसको देना है? मैं बोलता था, भैया BDO ये तू अपने पास ही रख, मैं किसको बांटूंगा? 100 बीमार 1 अनार, कहां चलेगा काम? हम क्या करेंगे? ये 2 मकान को लेकर के किसको देंगे?
आज मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बन करके तैयार हुए। एक एक पंचायत में 25-25, 30-30, 40-40 मकान बन रहे हैं। आप कभी गांव में जाइए तो जरूर पूछो कि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान है, जाके देखो वो पक्का मकान कैसा है, पक्की छत कैसी है। और मोदी जी का सपना है कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। ये बदलता भारत है। इसलिए 2024 में मोदी जी को लाना है और हमको कमल का निशान खिलाना है। हम बात करें अगर अन्य योजनाओं की बात करें, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, विकसित भारत की तरफ बढ़ने की योजना, ये सारी योजनाओं को, जल जीवन मिशन, आप तो शहर से हैं, शहर में तो अगर पानी ना आए तो त्राही त्राही मच जाए, इसलिए आपके यहां दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं तो गांव से आता हूं। मेरी माताएं, मेरी बहनें 2-2 किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतर करके किसी पोखर और तालाब से पानी भरती थी और फिर घड़ा उठा करके 2-2 किलोमीटर ऊपर जाकर के अपने घरों में वो पानी पहुंचाती थी। 4-4 घंटे दिन के लगते थे उनको पानी पहुंचने के लिए। आप सोचिए कि मोदी जी ने किस तरीके से उनका परिवर्तन किया। आज हर घर जल, हर घर नल, इस कार्यक्रम को आगे जल जीवन मिशन में बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में और पूरी ताकत से आगे बढ़ाने में हम काम करें। मैं टेररिज्म की बात करूंगा, मैं सुरक्षा की बात करूंगा। मैं बॉर्डर के इलाके से आता हूं, मुझे मालूम है, आपको सिर्फ सुना रहा हूं मैं आपके ध्यान में लाने के लिए। पहले जब बॉर्डर पर झगड़ा होता था और पाकिस्तान से गोली चलती थी तो मुझे याद है हमारे यहां एक जगह है नगरोटा, तो बॉर्डर पर खड़ा सिपाही नगरोटा इन्फॉर्म करता था। नगरोटा वाले चंडी मंदिर इन्फॉर्म करते थे। चंडी मंदिर है जो हमारा वेस्टर्न हाई कमांड का हेडक्वार्टर है, और चंडी मंदिर दिल्ली को हेडक्वार्टर को बताता था कि वहां गोली चली है, और दिल्ली बोलता था रुको हम आपको जवाब देंगे। जब तक जवाब देते थे तब तक हमारे जवान वहां चुपचाप अपने बंदूकें लेके खड़ा रहते थे। जब से मोदी जी आए हैं सीधे सीधे ऑर्डर हो गया है, जिस झुरमुट में से भी गोली की आवाज निकले उस झुरमुट को शांत कर देना और तब आकर के हमको रिपोर्ट करना, ये अंतर है। अगर उरी में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अगर पुलवामा में अगर कोई हरकत की तो 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हो गया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। हम पहले क्या सुनते थे? बॉम्बे ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट, सबअर्बन ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, बाटला हाउस केस, मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल के अंदर एक तरीके से मैसेकर होना, अहमदाबाद ब्लास्ट, वाराणसी ब्लास्ट, प्रयागराज ब्लास्ट, यह हम ब्लास्ट सुनते थे। आज हम खबर क्या सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट पहले पकड़ा गया, एक वहां पकड़ा गया, एक वहां पकड़ा गया। आज सुरक्षित भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत खड़ा है और सुरक्षित है, और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा। आजकल ये हम राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। ये हम लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक घटना है, और मैं कहूंगा कि आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये घटना अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। 500 साल का संघर्ष, 500 इयर्स का स्ट्रगल, एक शताब्दी में कम से कम 5 से 6 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आप सोचिए 500 साल में कितनी पीढ़ियां गुजर गई। हमारा सपना था, कल अपनी आंखों से हमने रामलला को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान होते देखा। यह हम सबके लिए सौभाग्य है। मित्रों, ये आज सारा देश राममय है।
आज सारा देश भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। आज राममय तो है ही है, आज हमारे कांग्रेस भाई को भी बोलना पड़ रहा है, मैं भी राम का ही हूं, मैं भी राम का ही हूं। मैं उनसे पूछता हूं, देर क्यों लगा दी, पहले आ जाते ना। हमसे कांग्रेस के मित्र पूछते हैं, आप तो बीजेपी वाले, आप राम के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा चैंपियन बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां, जिस समय तुम राम के मंदिर को बनाने में अवरोध पैदा कर रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा था, मेरा जीवन किस काम का काम है, तो राम के नाम का। ये उस समय नारा लगा रहा था। इसलिए हमारे को सौभाग्य है, हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, जिसके लिए 500 साल हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, जिसके लिए यही गुजरात की धरती थी ना, जब 1990 में आप रथ यात्रा लेकर के निकले थे। यही गुजरात की धरती थी जब हम लोग राम के नाम पर वहां राम जन्मभूमि, कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम ये कहते थे। और बाद में तुम हमको चिढ़ाते थे तिथि कब बताएंगे, तो अब हमने तिथि भी बना दी और इतिहास में दर्ज भी करा दिया। इस बात को भी याद कर लेना चाहिए। मित्रों, अंत में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, वो ये कि आजकल ये इंडी अलायंस की चर्चा हो रही है और ये भरपूर मोदी जी को गाली देते हैं, भरपूर मोदी जी को गाली देते हैं। ये बोलते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। आपने सुना है ना, यही बोलते हैं ना। इंडी अलायंस का एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भारत को आगे ले जाओ, भारत को आगे ले जाओ, भारत को आगे ले जाओ, विकसित भारत बनाओ। अब ये इंडिया अलायंस की बात मैं करूं, इनका एजेंडा वैसे 3 है। पहला एजेंडा है परिवार बचाओ, दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ, और तीसरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के आरोपों से बचो। अब बचेंगे कैसे? मोदी जी ने तो लाल किले के प्राचीर से कहा, एक भी बेईमान बचेगा नहीं, एक्शन हो के रहेगा। तो इनका और कोई काम नहीं है, परिवार बचाओ। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी, ये मुलायम, ये अखिलेश, ये डिंपल, इसके बाद फुल स्टॉप है कि नहीं है? ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, ये राबड़ी, ये तेज प्रताप, ये तेजस्वी, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बताइए, बंगाल में पीसी का मतलब बुआ, बुआ का मतलब ममता, और भाईपो, भाईपो का मतलब भतीजा, बुआ और भतीजे की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए कि जगन की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, करुणानिधि स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर, केटीआर और उसकी बेटी कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले, बाकी अजीत पवार जाए जहां जाना है, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे और उसका बेटा आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? तो ये इंडिया अलायंस परिवार की पार्टी, परिवार को बचाने में लगी है। ये सब परिवार को बचा रहे हैं। मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा पोता, मैं और मेरा दामाद, इससे बाहर इनको कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरा, प्रॉपर्टी, हर एक जगह भ्रष्टाचार। आप बताइए, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी हेराल्ड नेशनल हलाल केस में बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइए, आप बताइए, शरद पवार पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, लालू यादव पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, गोमती फ्रंट पर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए,
ये ममता के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार बचाओ अभियान है इंडी का। भ्रष्टाचार में, ये भ्रष्टाचार में लगे हुए लोग, और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं यहां जो बैठे हुए लोग हैं। अभी मैं धारा 370 की आपसे बात करता हूं। अगर सरदार पटेल जी ने एक एक सूबे को पिरोने का काम किया तो उसमें जो छूट गया था जम्मू कश्मीर, उसको मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही करके उसको भी हम एक उसमें पिरोने का काम किया। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी फर्स्ट, गुजरात फर्स्ट, एंड अंडर मोदी जी वी हैव टू मेक इंडिया फर्स्ट एंड विकसित भारत, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। दुनिया में भारत फर्स्ट, भारत में सामर्थ्य है, भारत में समर्थन है, भारत में सक्षम है, भारत का नौजवान सक्षम है, और मोदी जी के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना है। बोलिए, गुजरात 26/26 देगा ना? 26/26 देगा ना? कमल खिलेगा ना? 2024 में मोदी जी फिर आएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। बहुत बहुत माननीय अध्यक्ष श्री